Welcome back, students, to this skill development class of chemistry. This class is valid for all students and learners of chemistry who want to develop the skill of balancing chemical equations. Whether you are in class 9 or 10 or 11th or 12th, if you have not developed this skill, this is the lesson for you. Will really make your chemistry strong and good. This is Minish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, Jammu and Kashmir, bringing you this lesson on balancing chemical equations. So let's move ahead. You need to have some prior knowledge of atoms and elements and writing of chemical formulas. By the end of this lesson, students, you should be able to understand why chemical equations need to be balanced, and you will also be able to do yourself balancing both the reactants and the products if you are given an unbalanced equation. मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको लिखने आने चाहिए. बैलेंसी के साथ फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो नॉलेज आई एम नॉट टीचिंग हियर. इफ यू नीड जस्ट लेट मी नो. 9th क्लास का स्टफ होता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड. This lesson is going to deal with balancing of these equations. Now, writing chemical reactions using chemical equations. Let us look at a physical reaction. Okay, so I have zinc, and in zinc I put HCl. We know metal plus acid will form zinc chloride and will liberate hydrogen gas. So let me show that reaction. We have put some zinc in a beaker. To this we add some HCl acid. It reacts to form zinc chloride and hydrogen gas. Right? Now यहाँ पर what we do is we have a zinc solid, HCl मतलब hydrogen and chlorine atoms, and what we find is that ये products पैदा होते हैं. यहाँ पे अगर आप रिएक्शन को देखें तो भाई इसको ऐसे कैसे छोड़ दें. तो you see the conservation of mass is being disobeyed because there is one zinc atom here, the blue atom, on the product side. एरो के उस तरफ को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. दिस इज वन जिंक एटम. तो जिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई फाइंड देयर इज वन हाइड्रोजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, बट देयर आर टू हाइड्रोजन्स हियर. There is one chlorine green atom here and there are two chlorine atoms here. So that means this reaction as it is wrong. It is not a balanced reaction. In every reaction we have to ensure that the number of atoms on the reactant side should always be equal to the number of elements that are there on the product side. अब हम खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ तो एक है. सो वी रियलाइज दैट इफ आई मल्टीप्लाई HCl by 2, right? Let's see again. We have, let us touch the speaker. We have a zinc plus HCl के दो एटम्स लगे, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. राइट नाउ बीकर के अंदर खूब सारा जिंक है, खूब सारा HCl है. तो ये रिएक्शन से हमको ये पता चलता है दैट इफ फॉर एवरी वन एटम ऑफ जिंक कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन,
two molecules of zinc chloride need to participate to produce one molecule of zinc chloride ZnCl2 and one molecule of hydrogen gas. ये तो हम फिजिकल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, राइट? नाउ हाउ डू यू राइट दिस? अब रिएक्शन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जिंक, राइट? इसे जिंक सॉलिड प्लस हाउ मेनी HCl? 2 HCl react to form zinc chloride plus hydrogen, राइट? हमने उसको रिएक्शन को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और हमने पाया दैट यहां पर दैट 2 HCl के मॉलिक्यूल लगेंगे तब ये रिएक्शन बैलेंस होगा, रिएक्टेंट्स की तरफ के पार्टिसिपेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी. So that is why this reaction zinc plus 2 HCl is zinc chloride plus hydrogen gas. जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं, it is very important to also specify what is the state of that element that has been used or the molecule that has been used. So zinc brackets में S लिखा मतलब it was in a solid state. HCl was aqueous liquid state. जिंक क्लोराइड जो बनेगा वो भी एक्वस स्टेट होगा एंड हाइड्रोजन वुड बी अ गैस. नाउ इफ यू मेंशन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, देन दिस रिएक्शन बिकम्स मच मोर इंफॉर्मेटिव, बिकॉज हमको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन एक गैसियस फॉर्म में लिबरेट होने वाली है और क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, इट इज गोइंग टू राइज अप फ्रॉम द बीकर एंड इज गोइंग टू एस्केप. तो अगर हमको इसको इकट्ठा करना है, राइट, अगर हमको इसको इकट्ठा करना है तो व्हाट विल हैपन इज वी विल नीड टू हैव अ इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठी की जा सकती है. इनफैक्ट लैब में हम इसको यूज करते हैं, इस टेक्निक को, सेम रिएक्शन यूज करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एज पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल वर्क. जिंक एक सिल्वर शाइनिंग मेटल होता है. अगर आपने कभी कोई सेल को तोड़ा है तो सेल की जो बॉडी होती है ना, वो सिल्वर से कलर की होती है, ग्रेश सिल्वर, वो जिंक होता है. तो आपके घरों में आपको ओल्ड सेल में से जिंक मिल सकता है खूब सारा, राइट? नाउ सो हमने कहा रिएक्टेंट एटम्स आर कंजर्व थ्रू अ रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, राइट? सो हियर we find that we have यहाँ पर इसको दिखाने का ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. ओके, अब हम एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, प्लस HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, reacts to form sodium chloride NaCl plus H2O water, right? So this is a displacement reaction, double displacement reaction. किया था ना आपके साथ reactions, is a double displacement reaction. So now let us look at in the ball structure form क्या हो रहा है. So we have एक सोडियम का एटम, एक OH का आयन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, एक H, एक Cl, and they react to form, right? They react to form Na, right? Okay, so let us say इधर हम कैसे करेंगे, इधर एक यहाँ पे N आएगा, यहाँ से Cl आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और एक OH यहाँ से आएगा, ऐसे होगा. तो
हमारे पास एक NaCl बनेगा और एक H, कितने H यहाँ पर? 2, H2O, राइट. नाउ let us look at third reaction. We have ferric oxide and sulfuric acid. It reacts to form ferrous sulfate and water. We want to balance this reaction. तो बैलेंस करने के लिए बच्चों आओ देखते हैं कैसे करेंगे. हम कोई भी आयन को उठा सकते हैं. लेट अस से मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं. यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, H2, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है. यहां भी 2 हैं. वेरी गुड. यहां पर देखो, अब SO4 को देखो, हाइड्रोजन के साथ SO4 है. SO4 O4 जो लिखा है ना, ये बेटा O के नीचे है, थोड़ा गलती से आ गया. तो SO4 होल थ्राइस है. इसका मतलब SO4 के 3 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं. सो वी कैन क्लियरली सी दैट हमको यहाँ पर एक 3 ऐड करना चाहिए. ऐसा करने से हमारा SO4 जो है वो बैलेंस हो जाएगा. लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुआ, ये 3H2O है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इस रिएक्शन में भी मेरे को एक 3 ऐड करना पड़ेगा, राइट. अब मैं देखता हूं Fe2O3. यहां पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन 3 हो गए. यहां पर भी ऑक्सीजन 3 है. SO4 तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है. Fe2 है, यहां पर भी Fe2 है. इसका मतलब यहां पर आएगा बच्चों 1 और यहां पे आएगा 1. So 1 Fe2O3 plus 3 H2SO4 forms 1 molecule of FeSO4 whole thrice plus 3 molecules of water. Right? एक एक करके आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे. इसको हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं. तो यही हमने कहा, 1 molecule of Fe2O3 plus 3 H2SO4 forms Fe2SO4 whole thrice plus 3H2O. ठीक है. ऑलराइट, आइए फिर से आगे बढ़ते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द करेक्ट कोएफिशिएंट्स नेक्स्ट टू ईच मॉलिक्यूल टू बैलेंस द इक्वेशन. तो हम नेक्स्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल. एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2. तो आओ देखते हैं. एल्यूमिनियम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक ले लो. एल्यूमिनियम इधर एक है, कुछ नहीं है, मतलब एक ही अभी दिखाई दे रहा है. यहां पर भी एक ही है, तो एल्यूमिनियम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. हाइड्रोजन के साथ देखते हैं. तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हैं, लेकिन साथ में क्लोरीन भी है. तो क्लोरीन के साथ देखते हैं. क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? Cl3, 3 है क्लोरीन. और यहां पर कितने हैं? यहाँ पे तो कुछ नहीं है. तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे, अगर क्लोरीन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा. अगर मैं सोचता हूँ मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ लेट अस से, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है? आप 2 हैं. तो लगा कि यार ये सही नहीं है, रब करते हैं इसको, राइट. रब करते हैं. अब हम सोचते हैं कि हमको हमेशा एक इवन नंबर की तरफ सोचना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ HCl के मॉलिक्यूल्स और यहां पर मैं 2 डाल दूं, ऐसा करने से क्या हुआ? क्लोरीन मेरा बैलेंस हो गया. 3Cl3, 3 2 6. यहां पर भी 6 क्लोरीन के एटम्स हैं. क्लोरीन बैलेंस हो गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इस तरफ प्रोडक्ट्स में 2 हो गए, यहां तो एक ही है, तो इधर भी 2 डाल देता हूं. अब मैं एल्यूमिनियम भी खुश हो गया और क्लोरीन भी खुश हो गया. हाइड्रोजन से पूछो तुम खुश हो? कहता मैं रिएक्टेंट्स में तो 6H है, यहाँ पर तो 2 ही है. तो कोई बात नहीं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 से करूंगा तो 3 2 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, सही है, और क्लोरीन भी 6 हो गए. तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. सो द करेक्ट वे इज, द करेक्ट रिएक्शन इज, अ बैलेंस रिएक्शन इज 2 एल्यूमिनियम plus 6 HCl reacts to form 2 aluminum chloride plus 3
molecules of hydrogen gas. ओके, तो पॉज करें वीडियो को, आप नोट करें साथ साथ, पॉज करने की जरूरत पड़े तो, और आप खुद भी प्रैक्टिस करें। अगला रिएक्शन जो है मैं चाहता हूं आप पॉज कर लें, रिएक्शन लिख लें, पहले आप खुद ट्राई करें। ओके, पॉज करें वीडियो को और अपने आंसर को फिर मेरे आंसर के साथ कंपेयर करना। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 प्लस HCl फॉर्म्स phosphorus pentachloride PCl5 प्लस वाटर H2O। यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम से हाइड्रोजन। तो ट्रायल एरर होता है, आप ट्राई करते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल हो गए 4। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ। अगर मैं 2 के साथ करता हूं बच्चों, तो हाइड्रोजन तो खुश हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन से पूछो, ये बोलता है इस साइड प्रोडक्ट में 2 है जबकि इधर तो 4 है, तो बोलता है हाँ मैं खुश नहीं हुआ, मुझे तो खुश करो, मैं खुश नहीं हो रहा हूं, राइट। सो हम बोलते हैं ये गलत हो गया, रब करो। तो ऐसा हिट एंड ट्रायल बच्चों करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। अब हम लेट अस से थोड़े और कॉम्प्लिकेट से चलते हैं, जैसे PCl5, यहाँ पे HCl है, क्लोरीन 5 है यहाँ पर, तो बच्चों क्लोरीन तो 1 है, तो यहाँ पे हमको 5 चाहिए, राइट। बट 5 मैंने कहा था ना, 5 तो ऑड नंबर है, तो हमको हमेशा इवन नंबर्स के साथ चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं इसको। ओके, तो मैं करता हूँ ट्वाइस ऑफ PCl5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके, तो क्लोरीन 10 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरे को 10 चाहिए, क्लोरीन खुश हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन तो बच्चों यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 313, ये तो अच्छी बात नहीं है। और प्रॉब्लम एक और भी है कि फॉस्फोरस यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे तो 1 है, तो फॉस्फोरस को खुश करो तो हमको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। इसका क्या फायदा हुआ, हाइड्रोजन भी इवन नंबर बन गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ से मिले फर्स्ट मॉलिक्यूल से, 10 हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिले, तो 10 प्लस 6 16 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, राइट, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे मैं 8 डालता हूँ। अगर मैं 8 डालता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, 8H2O, 8 16 हो गए। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है बच्चों 8, यहाँ पर कितना है, 4 2 जा 8। वेरी गुड। सो ये हमारा रिएक्शन जो है वो अब बैलेंस हो गया, दैट 2 molecules of H3PO4 plus 10 molecules of HCl form 2 molecules of phosphorus pentachloride plus 8 molecules of water। ठीक है, आओ एक और प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव Ca3PO4 whole twice plus sulfuric acid H2SO4 forms calcium sulfate CaSO4 and CaH2PO4 whole twice। Let us balance this particular equation। तो हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एक जगह से, राइट। लेट मी शो दिस रिएक्शन टू यू, दिस व्हाट द रिएक्शन वुड बी। हमने आपके साथ पिछले में निकाला था ना ये 2 10 2 8। हमको क्या करना चाहिए कि ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा 1 H3PO4 plus 5 HCl reacts to form 1 PCl5 plus 4 H2O। ना देखिए 1 5 1 4। अगर आपने ऐसा निकाला है तो भी अच्छी बात है, अगर आपने मेरे जैसे निकाला था तो आपको बाद में देखना चाहिए नो, कॉमन डिनोमिनेटर सबसे डिवाइड, ऊपर में नहीं कर सकते थे ना, ये 2 6 2 3 है, 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता था, लेकिन ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब हम इस रिएक्शन की बात करें, ये इसका आंसर है। मैं चाहता हूं कि आप चेक करें
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस हो रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो 1 Ca3, तो कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कितने हैं टोटल? 3 1 3। प्रोडक्ट्स में देखो 2 Ca, दो कार कैल्शियम यहाँ से, एक कैल्शियम यहाँ से, 3 कैल्शियम खुश हो गए। अब PO4 होल्ड ट्वाइस, तो PO4 होल्ड ट्वाइस, यहाँ पर भी PO4 होल्ड ट्वाइस है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, तो मैंने यहाँ पे अंदर एक H2 लिख दिया, बाहर भी एक होल्ड ट्वाइस है, तो 4 2 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी खुश हो गया। SO4 कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर लिख दिया ट्वाइस SO4। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ओके, नाउ राइट, हमारे पास जो है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बॉल वाले को छोड़ते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स बिफोर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। So we have aluminum plus ammonium hypochlorite reacts to form Al2O3, aluminium trioxide, aluminium trichloride, nitrogen oxide, and water. We want to balance this equation, right? So let us pause the video, try, इक्वेशन नोट करें। तो आओ देखो क्या करेंगे, मैं आपके साथ चलता हूं इसके ऊपर। प्रोडक्ट्स में देखते हैं एल्यूमिनियम को, यहाँ पे 2 हैं और एक यहाँ है, 3 है एल्यूमिनियम। इसका मतलब यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ, 3 डालता हूँ, तो एल्यूमिनियम खुश हो गए, बैलेंस हो गए। लेट मी ट्राई फॉर से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो इसका मुझे मतलब है कि मुझे यहाँ पर एक 2 डालना पड़ेगा, तभी ये हाइड्रोजन खुश होगा, बैलेंस हो जाएगा। खुश होने का मतलब नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन तो एक ही है, वेरी गुड। अब देखते हैं हम क्लोरीन को। इधर तो क्लोरीन है बच्चों एक रिएक्टेंट्स में, यहाँ तो 3 है, तो भाई ये तो गलत बात है, और 3 जो है वो तो हमको अच्छा लगता नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 डाल दें तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पर कितने हैं? 1 है, तो लेट मी राइट 6 है, क्लोरीन खुश हो गया। ओके, नाउ क्लोरीन खुश हो गया, तो क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, लेकिन अब जो है हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन तो हो गए 6 4 24, और हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन तो बच्चों हो गए 6 4 24, और यहाँ पे क्या है? यहाँ तो हाइड्रोजन 4 है, तो मुझे इसको 24 करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा 12, सो 12 H2O। अब हाइड्रोजन खुश हो गया। नाइट्रोजन से पूछो, नाइट्रोजन बोलता है मैं तो इधर 6 हूँ, आपने इधर 1 ही रखा है, तो बोलते चल ये तेरे को भी खुश करते हैं हम, इसको भी हमने 6 कर दिया, 6। हाइड्रोजन खुश, नाइट्रोजन खुश। क्लोरीन से पूछते हैं, क्लोरीन कितना है? कहता है 6 हूँ, यहाँ से देखो 3 2 6, क्लोरीन बोलता है मैं भी खुश। वेरी गुड। एल्यूमिनियम तो पहले ही खुश हुआ था, लेकिन अभी वो उसकी खुशी को चेंज करना पड़ेगा, खुशी को। कैसे? एल्यूमिनियम अब कितना हो गया यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितना है? 2 2 और 2 कितना हुआ? 4, तो इसका मतलब मुझे एल्यूमिनियम वहाँ पे लेना चाहिए था 4। ओके, अब देखते हैं क्या रह गया? ऑक्सीजन रह गया ना। ऑक्सीजन कितना है? 24। यहाँ पे देखते हैं कितना है ऑक्सीजन। यहाँ पे है 12, 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे है 6, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 18, 18 18 है अभी तो, 18 है। 18 प्लस यहाँ पे भी 2 डालना चाहिए ना हमको, डालना चाहिए या, तो
यहां पर हमारे पास लेट्स लेट मी ब्लॉक डाउन दी। तो यहां पर देखिए, यहां पे हमको 18 हुआ, 24 चाहिए तो हमको 6 और चाहिए, राइट। यहाँ पे मुझे एक 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना, यहाँ पे मेरे को एक 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तब ये ऑक्सीजन 6 हो जाता है। लेकिन अब ऐसा करने से एल्युमिनियम जो है वो तो दुखी हो गया। एल्युमिनियम कहता है मैं तो 4 हूँ यहाँ पे, और ऐसे मैं यहाँ पे हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे हो रहा हूँ 4 एंड 6। तो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, 6 है ना, तो इधर पे हम 6 करते हैं, तो बोलते हैं इसको करते हैं 6। एल्युमिनियम खुश हो गया, 6 एल्युमिनियम, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 6 हो गया एल्युमिनियम। बाकी तो हम बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, सब कुछ बैलेंस हो गया है। लेकिन अब एक चीज हम देखते हैं कि ये तो सारे नंबर्स इवन हैं, और इनको हम शॉर्टेस्ट में 2 से डिवाइड करते हैं सबको, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 3 और ये 6। ऐसा शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो दैट इज व्हाट द रिएक्शन विल बी। 3 एल्यूमिनियम प्लस 3 अमोनियम hypochlorite forms 1 Al2O3, 1 AlCl3, 3NO and 6H2O। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना होता है बाद में, और फिर हमारा काम हो जाता है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं दैट केमिकल रिएक्शंस को हमने कैसे बैलेंस किया, राइट। सो लेट अस डू वन मोर बैलेंसिंग। तो हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म्स पोटेशियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। तो आप पॉज कीजिए, अपने वीडियो को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और फिर आंसर देखते हैं। दिस शुड बी आंसर। 2 KNO3 plus 1 H2CO3 will form 1 potassium carbonate plus 2 molecules of nitric acid। आप प्लीज चेक कीजिए क्या सारे एटम्स on the reactant side are being balanced by all the atoms on the product side। ठीक है, चेक करें। इस तरह से कई सारे रिएक्शंस बच्चों, मैं लेट मी शो यू, लेट मी गिव यू सम होमवर्क, राइट। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये कुछ जो है ये वाले मोर यूजफुल फॉर 12th क्लास। तो बैलेंस रिएक्शंस मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ, आंसर्स भी दिखा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को करें अटेम्प्ट, चेक करें, चेक ही कर लें तब भी अच्छा है। इफ यू आर एबल टू चेक, दैट्स ऑल्सो गुड लर्निंग फॉर क्लास 10, एंड इफ यू आर एबल टू बैलेंस, दैट्स अ गुड लर्निंग फॉर क्लास 11 और 12 स्टूडेंट्स, राइट। फिर हमारे पास ये रिएक्शन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। बैलेंस चेक करेंगे क्लास 10th वाले, दैट्स द आंसर। Let me take ammonium, this reaction. This is the balanced reaction। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप बैलेंस चेक करें। 10th क्लास वाले ज़्यादा टेंशन ना लें, सिंपल उनको आते हैं एग्जाम्स में, जो मैंने आपको नोट्स में भेजे हैं। बट फिर भी हम सिर्फ 10th के बारे में नहीं सोचें, वी नीड टू डेवलप आवर स्किल्स। तो आप ये ज़रूर बैलेंस को तो चेक कर सकते हैं ना, बैलेंस चेक करेंगे तो भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इस रिएक्शन में 1 1 1 and chlorine के 3। Please check the balance of this reaction the way I have taught you। Carbon monoxide plus hydrogen gas burns and to form C8H18, that is octane and water।
That's the balanced reaction. 8 carbon monoxide, 17 hydrogen molecules form 1 octane C8H18 and 8 molecules of water. Please check the equation to see if it is balanced. Let's look at this equation. Next equation. Check the balance of this equation as well. So thank you very much for looking at this video to help you sharpen your skills of balancing chemical equations. What is the importance of chemical equation? Uh, how is a balanced equation very useful? These are the things that we'll take up with you in the next class. So all the best to you. Thank you very much and stay safe, stay happy, keep practicing and noting in your copies. This is Manish Gulati signing off from here. Bye bye.